نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور میں شرکت کے لیے چین روانہ۔ نائب وزیر اعظم چینی وزیر خارجہ وانگ جی کے ہمراہ ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ڈائیلاگ میں پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان چین ہمہ موسمی پارٹنرشپ کو مزید بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو، دونوں ملکوں کا علاقائی امن و استحکام کے لیے قریبی روابط رکھنے پر اتفاق، دونوں وزرائے خارجہ کا خطے میں امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے تحمل، دانش مندی اور سفارتی ذرائع کو بروئے کار لانے پر اتفاق۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ ہسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر قیلی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے خدمات حاصل کرنے پر اتفاق، وزیر اعلیٰ کی انٹراویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری کی بدولت پاکستانی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی عالمی تجارتی منڈیوں تک پہنچ گئی۔ معروف کمپنی سپر نیٹ عالمی مارکیٹس میں قدم جمانے کو تیار۔ دبئی سے سپر نیٹ کمپنی اداروں، کیریئرز اور انٹرپرینورز کلائنٹس کو خدمات فراہم کرے گی۔ سپر نیٹ کمپنی کی عالمی مارکیٹس میں پھیلاؤ کے لیے مشرق وسطی، افریقہ اور وسطی ایشیائی ممالک پر بھی توجہ مرکوز۔ کمپنی کی طاقت سیٹلائٹ کمیونیکیشن مارکیٹ 2030 تک نمایاں طور پر بڑھنے کی توقع۔ بھارتی جریدہ دا کمیون نے ہوش ربا انکشافات میں مودی کی نااہلی کا پردہ فاش کر دیا۔ جعلی ڈگریوں اور رشوت کے زور پر امریکی H-1B ویزوں کی فروخت کا مکروہ دھندا سرگرم۔ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی، انسانی جرائم، دھوکہ دہی اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کی آماجگاہ بن چکا۔ امریکہ میں ملازمتوں کے نام پر جعلی ڈگریوں کا منظم مافیا پورے بھارت میں سرگرم۔ کیرالہ پولیس نے مختلف مقامات سے مکروہ دھندا کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ منظم نیٹ ورک پورے بھارت میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو جعلی ڈگریاں فراہم کر چکا۔ دا کمیون نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی کا پاکستان کی خوبصورتی کا برملا اعتراف۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بعد نیو یارک کے میئر زہران ممدانی بھی پاکستان کے دلدادہ۔ حلف لینے کے بعد میئر زہران ممدانی کی لاہور سے تعلق رکھنے والی پاکستانی خاتون سمینہ سے ملاقات۔ زہران ممدانی کو میئر نیو یارک منتخب ہونے پر مبارکباد۔ ایک بار لاہور کا سفر کیا تھا، لاہور انتہائی خوبصورت شہر ہے، زہران ممدانی۔ میئر نیو یارک پاکستانی خاتون سے مل کر آبدیدہ ہو گئے۔ جنگ میں فتح کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ 2025 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ بہترین سفارتکاری کا کریڈٹ لیڈرشپ کو جاتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی معاملات میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل سے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں پر پابندی کے خاتمے کا مطالبہ۔ این جی اوز کے امدادی کام انسانی جانیں بچانے کے لیے ناگزیر ہیں۔ پابندی کے فیصلے سے جنگ بندی کے دوران ہونے والی معمولی سی پیش رفت کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس۔ ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ انجلینا جولی کا امریکی وفد کے ہمراہ رفاح کراسنگ کے مصری حصے کا دورہ، غزہ کے فلسطینی پناہ گزینوں اور امدادی کارکنوں سے ملاقات۔ جولی کی قریبی شہر العریش کے ایک ہسپتال میں مریضوں سے بھی بات چیت۔ دورے کا مقصد مصر میں زیر علاج زخمی فلسطینیوں سے ملاقات کرنا اور غزہ میں امداد کی ترسیل کا جائزہ لینا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی PP 289 ڈیرہ غازی خان کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کی بلا مقابلہ کامیابی پر مبارکباد۔ اسامہ عبدالکریم کی کامیابی قائد محمد نواز شریف کے عوامی خدمت کی ویژن کی فتح ہے۔ DG خان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ پنجاب میں صرف ترقی چاہتے ہیں۔ 2 سال سے کم عرصے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ کر دکھایا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مریم نواز شریف۔
साल 2025 अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए इंतहाई तारीक और दर्दनाक साल साबित। अफगान तालिबान रजीम में अफगान ख़वातीन बुनियादी हुकूक और बावकार ज़िंदगी से महरूम। अफगान मीडिया आमो टीवी ने अफगानिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ जारी जुल्म जबर और शदीद नफ्सियाती दबाव को बेनकाब कर दिया। ख़वातीन की तालीम, मुलाजमत और अवामी ज़िंदगी में शमूलियत पर पाबंदियाँ बरकरार हैं। अफगान यूनिवर्सिटी में ख़वातीन असातिज़ा और मुलाजमीन को निकाल दिया गया। आमो टीवी। साले नौ का पहला सुपर मून आज रात होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। पाकिस्तान में सुपर मून का आगाज शाम 5:51 से होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून चांद 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा। रिवायती तौर पर ये वुल्फ मून कहलाता है। ये अक्टूबर 2025 में शुरू होने वाले सुपर मून सिलसिले का आखिरी सुपर मून होगा। हरारे में 3 मुल्की अंडर 19 क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे फाइनल में पहुंच गए। 5वें मैच में पाकिस्तान की अफगानिस्तान को 133 रन से शिकस्त। अफगानिस्तान इवेंट से बाहर। पाकिस्तान के 238 रन के जवाब में अफगानिस्तान 30.2 ओवर्स में 105 रन पर ढेर। फाइनल 6 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़रिए तमाम नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आगाज। चैंपियनशिप 4 मराहल पर मुश्तमिल। ज़िली सतह पर पहला मरहला 10 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। डिविजनल सतह के मुकाबले 15 से 20 जनवरी तक मुनक्किद होंगे। सूबाई सतह पर 25 से 30 जनवरी तक, जबकि चौथा और फाइनल मरहला 5 से 10 फरवरी तक मुनक्किद होगा। फाइनल मरहले के मुकाबले सियालकोट में होंगे। इंटरनेशनल लीग T20 फाइनल कल डेजर्ट वाइपर्स और MI एमिरेट्स के दरमियान खेला जाएगा। क्वालिफायर 2 में MI एमिरेट्स की अबुधाबी नाइट राइडर्स को 7 विकेटों से शिकस्त। IL T20 के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और बिग बैश लीग T20 आज सिडनी थंडर्स और होबार्ट हरिकेन्स मध्य मुकाबल होंगे। मुकाबला दिन 1:15 से देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पॉइंट्स टेबल पर होबार्ट हरिकेन्स 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि सिडनी थंडर्स की टीम 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक डार पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर में शिरकत करने के लिए चीन रवाना हो गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के हमराह डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। डायलॉग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के साथ साथ शराकत दारी को बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इस्हाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मोहम्मद इस्हाक डार ने गुफ्तगू में इस अमर पर जोर दिया कि इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के मफाद में तमाम मसाइल का हल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए निकाला जाना चाहिए। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि खत्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल, दानिशमंदी और सिफारती ज़राए को बुरुए कार लाना ज़रूरी है। पंजाब में अमराज क़ल्ब के इलाज के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन टेक्निक मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नईम ताहिर खेली की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें अमरीकी डॉक्टर्स के जरिए मकामी डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने पर इत्तेफाक हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंट्रावेस्कुलर सर्जरी रवायती ओपन सर्जरी का महफूज और जदीद मुतबादिल है। वज़ीर आला ने जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में जदीद तरीका इलाज मुतारिफ कराने और जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी की हिदायत की। SIFC की मौसर और मरबूत सहूलतकारी के बायस पाकिस्तानी डिजिटल टेक्नोलॉजी और IT खिदमात को आलमी तिजारती मंडियों तक रसाई हासिल हो गई है। SIFC के स्ट्रेटेजिक विजन के तहत पाकिस्तान फ़नी महारत, डिजिटल खिदमात और टेक्नोलॉजी बरामदात के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है।
पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की तरक्की का तसलसल मारूफ कंपनी सुपरनेट की आलमी तौसीह से वाज़ेह हो रहा है। सुपरनेट ग्लोबल दुबई में अपना पहला इलाकाई हब कायम कर रही है, जहां से आलमी इदारों, करियर्स और एंटरप्रेन्योर्स क्लाइंट्स को खिदमत फराहम की जाएंगी। कंपनी मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका और मशरिकी और वस्ती एशिया की उभरती हुई मार्केट्स में कदम जमाने का इरादा रखती है, जहां अरबों डॉलर्स के टेक्नोलॉजी सेक्टर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाएगी। सुपरनेट के मुताबिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन मार्केट में 2030 तक नुमाया इजाफा मुतवक्के है, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत होंगे। सुपरनेट ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में तकनीकी और इंजीनियरिंग खदमात बदस्तूर बरकरार रहेंगी, जिससे डिजिटल सर्विसेज की बरामदात में इजाफा होगा। कंपनी का कहना है कि आलमी तौसीह हिकमत अमली पाकिस्तानी टैलेंट, महारत और टेक्नोलॉजी को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा करेगी। SIFC की सहूलतकारी को पाकिस्तानी IT टैलेंट और जिद्दत को आलमी मार्केट से जोड़ने में कलीदी करार दिया जा रहा है, जो मुल्क के टेक सेक्टर और माशी मुस्तकबिल के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ मईशत के लिए कितनी बेहतर हैं और गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता मुल्क की मईशत के लिए कैसा रहा, ये हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमें बताएंगे, जो इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मीर, बताइएगा मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी, गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता मुल्क की मईशत के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा। खास करके ब्लूमबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हुकूमत की इन पॉलिसीज़ की वजह से दिसंबर के महीने में इन्फ्लेशन रेट जो था वो तवक्कुआत से कम रहा, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने अपनी ज़री पॉलिसी में भी कटौती की और ये वो इक़दाम है जिससे मुल्क में मुआशी सरगर्मी में इजाफा होगा। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में तकरीबन 6,600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 1,72,000 से मार्केट स्टार्ट हुई थी और 1,79,034 पर बंद हुई है। हमारे साथ इस वक्त स्टॉक मार्केट के एक माहिर मौजूद हैं, जिब्रान सरफराज। उनसे पूछते हैं कि वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से मुल्क की मईशत में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है और स्टॉक मार्केट भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। जी जिब्रान, बताइएगा कि स्टॉक मार्केट में ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो आए रोज़ नए रिकॉर्ड्स बना रही है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपने देखा कि जो प्राइवेटाइजेशन का अमल था 20 साल से रुका हुआ था, उसमें एकदम से जो है वो एक आपने देखा कि बहुत अच्छा शानदार अच्छे रेटों पे प्राइवेटाइज हुई और अच्छे लोगों के पास गई और इसमें दोनों का फ़ायदा है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो IMF की जो रिक्वायरमेंट थी हमने फुलफिल की और हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 14,000 अरब से बढ़ के तकरीबन 19,600 अरब तक पहुँच गई। हम बात करें पूरे साल की तकरीबन 60,000 पॉइंट का इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ आपने नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर की जो तादाद है जो 2-3 साल पहले 2.5 लाख थी उसमें भी तकरीबन 5 लाख के करीब पहुंच गई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। जैसे कि लास्ट वीक ऑयल एंड गैस में बड़ी अच्छी डिस्कवरी हुई और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो बेनिफिट है वो इन्वेस्टर को होता है और इसकी अर्निंग पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है और इसमें इंटरेस्ट है मज़ीद बढ़ जाता है। जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या देख रहे हैं PSX में, और PSX में इतनी ज़्यादा कैपिटलाइजेशन हो या वॉल्यूम का बढ़ना, ये क्या शो कर रहा है? जी बिल्कुल, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ना का मतलब है कि जो हमारे शेयर्स की प्राइसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है और इन्वेस्टर भी पैसे कमा रहा है और हमारी जो कंपनीज हैं लिस्टेड कंपनीज वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि जो पैसे की रिवॉल्व होना है या फिर जो पैसे का लगना है उससे पता चलता है कि कितना कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। और पिछले कुछ नंबर्स जो आ रहे हैं उसे हम देख रहे हैं कि मार्केट जिस तरीके से ग्रो कर रही है, खास करके 2025 में 58,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है स्टॉक मार्केट में, जो कि शो करता है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस मार्केट में। और ये ना सिर्फ पोटेंशियल शो कर रहे हैं बल्कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा पॉलिसीज़ पे इनका कॉन्फिडेंस है जो हुकूमत ने मुतारिफ करवाई हैं। और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इस पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी बरकरार रही तो आने वाले वक्त में स्टॉक मार्केट में आए रोज़ नए रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे। जी पाकिस्तान एयरफोर्स का तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक बर्री और बहरी अहदाफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक कौमी एरोस्पेस और दिफाई सलाहियतों की तरक्की में एक और अहम संग मील दुश्मन के ज़मीनी और बहरी अहदाफ को नहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाने और रवायती वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस तैमूर को इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है।
یہ دشمن کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام سے مؤثر طور پر بچ نکلنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے۔ رانا شہزاد، آگاہ کیجیے گا، ایک اور اچھا اور خوش آئند دن ہے پاکستان کے دفاع کے اعتبار سے۔ پاکستان ایئر فورس کا تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی مناظر، آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور کروز میزائل ویپن سسٹم کا کامیابی سے تجربہ کیا ہے۔ یہ جو کامیاب تجربہ ہے یہ قومی ہوا بازی اور دفاع کی صلاحیتوں میں ایک اور اہم سنگ میل ہے جو آج حاصل کیا گیا ہے۔ یہ تیمور کروز میزائل ایئر ٹو ایئر دشمن کی جتنی بھی ٹارگیٹس ہیں ان کو 100% جو ہے وہ زمینی اور سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر کی رینج تک جو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کروز میزائل جس میں ایک روایتی وار ہیڈ بھی شامل ہے، جدید نیویگیشن اور گائیڈنس کے نظام سے لیس ہے، اور اس جو نیا تیمور کروز میزائل سسٹم ہے یہ بہت کم بلندی پر اڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ جو دشمن کا ریڈار سسٹم ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے، اور دشمن کے جتنے بھی فضائی اور میزائل دفاعی نظام ہیں ان سے یہ مؤثر طریقے سے بچنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی انتہائی درست انداز میں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت پاک فضائیہ کی روایتی جو پروفیشنل تیاریاں ہیں ان کو نمایاں طور پر بڑھاتی ہیں، اور اس سے ملک کا جو دفاعی نظام ہے اس کو مزید جو استحکام ملا ہے۔ اس کامیاب تجربے سے پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے اس کی تکنیکی پختگی اور اس کی جو خود انحصاری کی منزل کا حصول ہے اس کی طرف بھی یہ ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ اس تجربے کا مشاہدہ پاکستان کی مسلح افواج کے سینئر حکام نے کیا، ساتھ ہی ممتاز جو سائنسدان اور انجینئرز بھی ہیں اس تجربے کے موقع پر موجود تھے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اس شاندار کامیابی پر سائنسدانوں، انجینئرز اور پوری پاک فضائیہ کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس ٹیم کی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے غیر متزلزل عزم کی بھی تعریف کی۔ ایئر چیف نے یقین دلایا کہ اس قسم کی کامیابیاں قوم کی جو دفاعی خود کفالت ہے اس کے حوالے سے انتہائی کامیابی ہے اور ایک قابل اعتبار روایتی ڈیٹرنس کی صلاحیت برقرار رکھنے کے عزم کا ثبوت ہے۔ جی مناظر، بہت شکریہ رانا شہزاد السلام آپ کا ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستانی ایئر فورس کا تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ، تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک بری اور بحری اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ قومی ایروسپیس اور دفاعی صلاحیتوں کی ترقی، پاکستان ایئر فورس کا تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ڈاکٹر عاصم رضوان سے، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے نمائندے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم، آگاہ کیجیے گا، ایک اور بڑی اور اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے، دفاعی سنگ میل ہے، تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک بری اور بحری اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور آج کامیاب تجربہ کیا گیا ہے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے۔ قومی ایروسپیس اور دفاعی صلاحیتوں کی ترقی ایک بڑا، اہم اور شاندار سنگ میل، دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو نہایت درستگی سے نشانہ بنانے اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور کو انتہائی کم بلندی پر پرواز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی، انسانی جرائم، دھوکہ دہی اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ بھارتی قونصل خانوں میں جعلی ڈگریوں کے حامل نوجوانوں کو امریکی H-1B ویزا دینے کے ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ بھارتی جریدہ دی کمیون نے ہوشربا انکشافات میں مودی کی نااہلی اور بھارت میں منظم جعلی ڈگریوں کے نیٹ ورکس کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ دی کمیون کے مطابق کیرالہ پولیس نے مختلف مقامات سے 100 کروڑ روپے کا مکروہ دھندا کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کیا، جو بھارت میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو جعلی ڈگریاں فراہم کر چکا ہے۔ کیرالہ میں فراڈ نیٹ ورک سے 22 یونیورسٹیز کے 1 لاکھ سے زائد سرٹیفکیٹس بھی برآمد ہوئے۔ پولیس چھاپے کے وقت مرکزی ملزم دنیش عرف ڈینی گھر پر جعلی ڈگریوں کی پرنٹنگ میں مصروف تھا۔ جعلسازی کا یہ منظم گروہ اندرون اور بیرون ملک ملازمتوں کے لیے بھی لوگوں کو جعلی ڈگریاں فراہم کرتا تھا۔ بھارتی ریاست کیرالہ، تامل ناڈو، کرناٹک، مہاراشٹر، گوا اور دہلی سمیت دیگر ریاستوں میں بھی اسی طرح کے نیٹ ورک سرگرم ہیں۔ دی کمیون کے مطابق پولیس نے منظم نیٹ ورک سے 28 یونیورسٹیز کے جعلی مہرے اور مارک شیٹس بھی برآمد کیں۔ تامل ناڈو سے بھی بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر جعلی ڈگریاں دینے والے متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا۔
भारतीय पुलिस के मुताबिक मुनज़्ज़म गिरोह मेडिकल, नर्सिंग और इंजीनियरिंग के शोबों से मुतालिक 100 से ज़ायद जाली डिग्रियां फराहम कर चुका है। अमरीकी सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज की डायरेक्टर जेसिका वान ने भारत में वीजा जारी करने के अमल को बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। अमेरिका भिजवाने के लिए भारत में 36,000 से जायद जाली डिग्रियां फरोख्त की गईं। भारत में योमिया 200 से जायद H1B वीजा जारी किए जा रहे हैं, जिनमें 80 से 90% मुकम्मल तौर पर जारी हैं। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद भारतीय अफराद वीजा के वसूल के लिए जाली कवायफ और असनाद का इंदराज कराते हैं और उसके लिए भारी रिश्वत भी देते हैं। डायरेक्टर CIS के मुताबिक जाली वीजा के सारे अमल को भारतीय सियासतदानों की पुष्टपनाही और सहूलतकारी भी हासिल है। भारत में तैनात अमरीकी सिफारतकार महविश सिद्दीकी भी H1B वीजा फ्रॉड को आश्कार कर चुकी हैं। अमरीकी H1B वीजा के लिए भारत में धोखाधड़ी और फ्रॉड का बराह रास्त मुशाहिदा किया गया है। डायरेक्टर CIS के मुताबिक भारत में जाली डिग्रियां, जाली बैंक स्टेटमेंट्स और जाली शादी या पैदाइश के सर्टिफिकेट्स भी फरोख्त किए जाते हैं। भारतीय शहरी फ़कत डिग्री रखने का दावा करते हैं, मगर हकीकत में उन्हें डिग्री से मुतालिक कोई इल्म नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय नजाद अमरीकी सिफारतकार महविश सिद्दीकी ने भी भारतीय रियासत चेन्नई कौंसल खाने को दुनिया का सबसे बड़ा H1B वीज़ा फ्रॉड का मरकज करार दे दिया है। भारतीय शहरी वीज़े के लिए भारी रिश्वत तक देते हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाली डिग्री की कीमत $1400 तक रखी गई है और अब तक 366,025 जाली डिग्रियां फरोख्त की जा चुकी हैं। भारत और उसकी नाअहली सरकार का मसनूई शाइनिंग इंडिया का नाम नहाद प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब कर चुका है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2025 में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई है। बेहतरीन सिफारतकारी का क्रेडिट लीडरशिप को जाता है। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बहुत बुलंद हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी मामलात में अपना अहम किरदार अदा किया। पिछला साल अल्हम्दुलिल्लाह एक गैर मुतवक्को नाकाबिले यकीन हद तक पाकिस्तान की अमेरिका में सिफारतकारी के लिहाज से कामयाब तरीन साल था। कामयाबी की कई जहतें होती, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें सबसे अहम जहत जो है वो हमारी जो क़यादत है उसका एक किरदार था। पाकिस्तान आज भी सफ़े अव्वल की रियासत है, बल्कि एक मरकज़ी किरदार इलाकाई इस्तेहकाम, इलाकाई अमन और जो एक उससे बढ़कर उसकी तौसी के ज़िम्मे जो बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती है उसमें हमेशा अपना किरदार अपने वजूद और अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर अदा करता रहा है और आइंदा भी करने जा। एक ऐसे साल के बाद जिसमें एक इंतहाई मस्बत तब्दीली जो है वो पाक अमरीका ताल्लुकात में रूनुमा हुई, जो गैर मुतवक्को हद तक मस्बत थी, उसके पेश नज़र तो हमारी ये शिराकतदारी और भी अहम है। अमरीकी सदर ट्रंप के बाद न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी भी पाकिस्तान के दिलदादा निकले। हल्फ लेने के बाद मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी खातून समीना से हुई। मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि उन्होंने एक बार लाहौर का सफ़र किया था और लाहौर शहर इंतहाई खूबसूरत है। ये मुलाकात अक्कासी करती है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दर हकीकत पाकिस्तान के हकीकी सफ़ीर और मुस्बत चेहरा हैं। पाकिस्तानी शहरी समीना ने ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि आपका रवैया और लोगों के लिए दिली हमदर्दी काबिल तकलीद है। Sorry, my English is not so good. I am written some. That's fine. Okay, first of all, congratulations. Your empathy deserves to lead. Okay, number one. Number two, thank you for creating softness in people's heart. In world where people are not united. Okay. The third one, please continue to be our light and hope during this difficult time. Thank you. Really, you, my family, my daughters, my husband, everyone. When I go outside New York, I see some happiness and satisfaction people face. I'm a very good observer. So I saw little change in that people faces, like hope, light, happiness because of you. Thank you. What's your name? Samina. Samina? Yeah, I'm from Pakistan. Pakistan? Yeah. Urdu aati? हाँ. Oh,
पढ़ तो नहीं सकता हूँ, और नहीं बोल तो पढ़ते, सकता लेकिन हूँ। मैंने हाँ तो मुझे ये था कि मुझे पता नहीं इंग्लिश, मेरी बेटी कहती नहीं मम्मा उनको आती है, आप जाए उर्दू में बात करें। कहाँ से हो पाकिस्तान? पाकिस्तान लाहौर, लाहौर से? लाहौर से मैं एक दफा गया था, गया था लाहौर। आप बहुत ही खूबसूरत शहर है। बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन आप जैसे लोगों ने आके न्यूयॉर्क को बहुत खूबसूरत बना दिया है, यकीन करें। वो खूबसूरती अलग है बिल्डिंग्स की, हर चीज़ की बिल्डिंग, लेकिन जो खूबसूरती आपने लोगों के दिलों में दी है ना, और जो सॉफ्टनेस डाली है, मैंने बड़े बड़े हार्ट्स को बदलते देखा है यहाँ पर, थैंक यू, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, दोनों। थैंक आपने लोगों के दिल बदल दिए हैं, थैंक यू। और ये आप एक कितना गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से, वो आपको मिला है। थैंक यू। मुझे खुशी हो रही है, समझ आ रहा मैं और क्या बात करूं। इंग्लिश मुझे अच्छी आती नहीं, मैं आपसे इंग्लिश में भी अच्छी बात। जो भी बोलना है। आपकी आंखों में जो एक सच्चाई है ना, वो किसी से छुप नहीं सकती, किसी से छुप नहीं सकती। थैंक यू, नहीं। थैंक यू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद फराहम करने वाले इंसानी हमदर्दी के इदारों पर आयद पाबंदी पर तशवीश का इज़हार करते हुए इसराइल से मुतालबा किया है कि वो इस पाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने एक बयान में कहा कि एंटोनियो गुतेरेस ने इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमें ज़िंदगी बचाने वाले इंसानी कामों के लिए नागुज़ीर हैं और इस मुअत्तली से जंगबंदी के दौरान होने वाली मामूली पेशरफ्त को नुकसान पहुँचने का खदशा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों पर पाबंदी का इसराइली इक़दाम फ़लस्तीनियों को दरपेश इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना देगा। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने 37 गैर मुल्की इमदादी तंजीमों की गज़ा तक रसाई उस वक्त तक मुअत्तल कर दी जब उन्होंने अपने फ़लस्तीनी मुलाज़मीन की फहरिस्तें इसराइली हुक्काम के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा अंजेलिना जोली ने अमरीकी वफ्द के हमरा रफाह क्रॉसिंग के मिस्री हिस्से का दौरा किया। हुकाम ने हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की मुहाजिरीन एजेंसी की साबिक खुसूसी मंदूब का खैर मकदम किया, जहां उन्होंने इंसानी हमदर्दी के कारकुनों और रज़ाकारों से गुफ्तगू की। मकामी मीडिया के मुताबिक इस दौरे का मकसद मिस्र में ज़ेर इलाज ज़ख्मी फ़लस्तीनियों से मुलाकात करना और गज़ा में इमदाद की तरसील का जायज़ा लेना था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जूली ने करीबी शहर अल-अरेश के एक हस्पताल में मरीजों से बातचीत भी की। रफ़ा में जूली ने इंसानी इमदाद की तंजीम रेड क्रिसेंट के अरकान और गज़ा में इमदाद पहुँचाने वाले ट्रक ड्राइवरों से भी मुलाकात की। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा ने कहा कि वो इन रज़ाकारों से मिलकर फ़ख्र महसूस कर रही हैं। रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को अक्टूबर से गज़ा में नाफिजुल अमल जंगबंदी के तहत दोबारा खोला जाना था, लेकिन अब तक ये बंद है। मिस्र और सऊदी अरब समेत 6 ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इसराइल पर दबाव डाले कि वो गज़ा में ज़रूरी सामान की फराहमी और तकसीम पर आयद पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म करे। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में जोरदार धमाकों की आवाज़ें और धुएं के बादल उठते हुए देखे गए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एलस्टिब टॉकस में जोरदार आवाज़ें सुनी गईं। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि टॉकस में कम अज़ कम 7 धमाके सुने गए और निचली प्रवास करने वाले तैयारों की आवाज़ें भी सुनी गईं। धमाकों के बाद शहर का जनूबी इलाका जो एक बड़े फौजी अड्डे के करीब है, वहाँ बिजली की फराहमी मुनक़ता होने की इत्तलात हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। अफ़गान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के लिए इंतहाई मुश्किल और मायूस कुन साबित हुआ। आमू टीवी और अफ़गान जरीदा हश्ते सुबह के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तहत ख़वातीन की तालीम, मुलाज़मत और अवामी ज़िंदगी में शमूलियत पर पाबंदियाँ बरकरार रहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि ख़वातीन को सख्त ड्रेस कोड पर मजबूर किया गया। मुतादिद ख़वातीन गिरफ्तार हुई और जामियात में ख़वातीन असातिज़ा और मुलाज़मीन को नौकरियों से निकाल दिया गया। आमू टीवी के मुताबिक तालिबान ने ख़वातीन को अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों में काम करने से भी रोका, जिससे इंसानी इमदादी सरगर्मियाँ मुतासिर हुईं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में हर 10 में से 9 ख़वातीन तालीम, रोज़गार और हुनर की तरबियत से महरूम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने डेरा गाजी खान से सूबाई असम्बली की नशिस्त 289 के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ओसामा अब्दुल करीम की बिला मुकाबला कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए इसे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के अवामी विजन की फतह करार दिया है। वज़ीर आला का कहना था कि डीजी खान के अवाम ने साबित कर दिया है कि पंजाब में लोग सिर्फ तरक्की चाहते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने कम अरसे में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई है। ये नशिस्त नून लीग के महमूद कादिर लुगारी के रुकन कौमी असम्बली मंतखब होने पर खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक PP 289 पर 25 जनवरी को पोलिंग होना थी।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ اس سسٹم کو ڈیریل کریں گے تو ملک کے ساتھ پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا۔ راولپنڈی میں جشن ولادت حضرت علی کی تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ موجودہ حالات میں ڈائیلاگ ہی سب سے بہتر حل ہے، پی ٹی آئی کو بات چیت سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور اصحاب کرام کے ماننے والے ہیں۔ کسی بھی انتشار سے بچنے کے لیے اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، لاہور کی فضائی صورتحال میں نمایاں طور پر بہتری ریکارڈ کی گئی ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہو کر 110 کی سطح پر آ گیا ہے۔ موسمی نمی اور ہوا کی رفتار میں اضافے کے باعث اسموگ کے مضر اثرات بڑی حد تک فضا سے صاف ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق شہر میں اس وقت اسموگ نہیں بلکہ سرد موسم کی قدرتی فوگ موجود ہے، جس کا صنعتی یا ٹریفک آلودگی سے براہ راست تعلق نہیں۔ سائنسی اعتبار سے موجودہ صورتحال اسموگ کی تعریف میں شامل نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر اینٹی اسموگ ایکشن مؤثر انداز میں جاری ہے، جس کے تحت دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ اینٹوں کے بھٹوں کی سخت نگرانی بھی جاری ہے۔ ای پی اے اور ضلع انتظامیہ کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں اور مسلسل مانیٹرنگ سے فضائی معیار میں عملی طور پر بہتری آئی ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ فوگ کو اسموگ قرار دینا درست نہیں، عوام حقائق کو مد نظر رکھیں۔ محکمہ صحت نے فوگ کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے، کم حد نگاہ میں محتاط ڈرائیونگ اور مریضوں کو ماسک کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ ادھر پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے بیشتر اضلاع میں دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ آج دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں کی صورتحال سے۔ آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں افغان دارالحکومت کابل پہلے نمبر پر رہا، جہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 340 ریکارڈ کیا گیا۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ دوسرے نمبر پر، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 243 ہے۔ پاکستان کا شہر کراچی تیسرے نمبر پر ہے، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 232 ریکارڈ کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر بھارتی شہر کولکتہ، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 223 ریکارڈ کیا گیا۔ پانچویں نمبر پر بھارتی دارالحکومت دہلی رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 208 ریکارڈ کیا گیا۔ ایتھوپیا کا دارالحکومت ادیس ابابا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 167 ریکارڈ کیا گیا، چھٹے نمبر پر رہا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے، وزیر اعلیٰ کے پی کے محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت روڈ سیکٹر کے فلیگ شپ منصوبوں پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سوات موٹر وے فیز 2، ڈی آئی خان موٹر وے اور دیر موٹر وے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سوات موٹر وے فیز 2 کے تعمیراتی کام جلد شروع کرنے، تکنیکی مسائل بلا تاخیر حل کرنے اور ڈی آئی خان موٹر وے کا بھی جلد سنگ بنیاد رکھنے کی ہدایت کی۔ دیر موٹر وے منصوبے کے لیے تمام قانونی اور انتظامی تقاضے تیز رفتاری سے مکمل کرنے اور صوبائی وسائل فراہم کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سوات موٹر وے فیز 2 80 کلومیٹر طویل ہوگی، جس میں 9 انٹرچینجز اور 7 پل تعمیر کیے جائیں گے۔ ڈی آئی خان موٹر وے 365 کلومیٹر طویل ہے، جس میں 19 انٹرنیشنل چینجز اور 2 ٹنلز شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے دور افتادہ علاقوں کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے دستیاب وسائل کے مؤثر اور شفاف استعمال کو یقینی بنانے کا بھی اعلان کیا۔
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से साल 2026 के लिए पुलिस को दिए गए अहदाफ पर अमल दरामद के लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। इजलास में क्राइम कंट्रोल, मनशियात के खात्मे, पुलिस वेलफेयर और सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर बनाने पर गौर किया गया। IG पंजाब ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम ज़ीरो टॉलरेंस की बुनियाद पर निपटाए जाएंगे। इन केसेस की फौरी यकसुई यकीनी बनाई जाए। उन्होंने पतंगबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ट्रैफिक और हाईवे पेट्रोल के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन, करप्शन के खिलाफ कड़ा एहतसाब और पुलिस एहलकारों की वेलफेयर को तरजीह देने की हिदायत की। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट ने SP स्वां जोन खुर्रम अशरफ के हमरा स्वां जोन में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें कत्ल के मुकदमात के मुद्दईयान से बराह रास्त मुलाकात की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मुतासरा शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और फौरी रिलीफ फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, जबकि कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस मुलज़मान की गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि साइलिन की दादरसी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और FIR के बाद मसाइल की सूरत में उनके दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोल रीजन रावलपिंडी ने गुज़श्ता साल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए 4877 इश्तिहारी मुजरमान और अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए। 52 चोरी शुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2,96,822 ई चालान जारी किए गए। रीजन ने 13,967 नॉन कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और 19,913 लर्नर परमिट्स जारी किए। इस अरसे में 47 गुमशुदा बच्चों को वालिदैन के हवाले और 2,135 आर्जी और मुस्तकिल तजावुजात का खात्मा करके ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया। नाजायज़ असलहा और मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई में हथियार, शराब और बड़ी मिकदार में चरस बरामद की गई। जापान में मुकीम मारूफ शायर और अदीब आमिर बिन अली के एजाज़ में आर्ट्स काउंसिल मुल्तान में अदबी तकरीब मुनक़िद की गई। मुक़र्रीन का कहना था कि आमिर बिन अली दयार गैर में रहते हुए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने और उर्दू अदब की तरवीज में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शफीक आदिल। मेरे पहलू में लाखों गम भी अक्सर सोए रहते थे, ये कैसा सान्हा आया उदासी का मुझे इजहार की सूरत कोई मौला अदा कर दे, न हो गर्चे लबे गोया उदासी का। ये है मारूफ शायर और मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ आमिर बिन अली, जो दयार गैर में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने और उर्दू अदब के फ़रोग़ और तरवीज में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, 17 किताबें हैं, शायरी है, सफ़रनामे हैं। जापान में उर्दू की जो है प्रोजेक्शन के हवाले से उनका बड़ा रोल है। अदब में बिल्कुल ये नहीं बल्कि अदब इनमें रचा बसा नजर आता है। मुशायरे में मुल्तान और दीगर शहरों से आए हुए शोरा ने अपना कलाम पेश किया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। है जो मुख्तसर सा क़याम, इसको तराज उसकी अता समझ, थपड़ाओ उसका फकत यही कि वो शाम तक करे। लुटा दिया सभी फिर भी खसारा कोई नहीं, अना की जंग थी और उसमें हारा कोई नहीं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल मुल्तान और अदबी तंजीम के रोह रवां राव वहीद असद की जानिब से सजाई गई इस खूबसूरत तकरीब का बुनियादी मकसद अदबी सरगर्मियों का फ़रोग और जनूबी पंजाब के शोरा और नए लिखने वालों की हौसला अफजाई करना है। मोहम्मद शफीक आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। साल नौ का पहला सुपरमून आज रात आसमान पर नजर आएगा, जिसके बायस चांद मामूल से बड़ा और ज्यादा रोशन दिखाई देगा। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपरमून का आगाज शाम 5:51 पर होगा और यह चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% तक बड़ा दिखाई देगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सुपरमून, जिसे रवायती तौर पर वुल्फ मून कहा जाता है, का खूबसूरत मंजर चांद के तुलू के वक्त रात के इब्तदाई हिस्से में देखा जा सकेगा। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ने 3 मुल्की अंडर 19 क्रिकेट सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। सीरीज के 5वें मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 133 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। हरारे में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 238 रन बनाए। समीर मिन्हास ने 56, उस्मान खान ने 43 और अली हसन बलोच ने 39 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान के सलाम खान और जीतुल्लाह शाहीन ने 2-2 विकेटें हासिल की।
जवाब में अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना न कर सकी और 30.2 ओवर्स में 105 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की उमरजेब ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 खिलाड़ियों को पवेलियन गिरा दिखाई। मोमिन कमर और अहमद हुसैन के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। फाइनल 6 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया है। रेसलिंग चैंपियनशिप मुल्क भर में मरहलावार मुनक़िद की जा रही है। चैंपियनशिप में मुल्क भर के नौजवान रेसलर्स को अपनी सलाहियतें के इजहार का भरपूर मौका फराहम किया जाएगा। चैंपियनशिप 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। ज़िली सतह पर पहला मरहला 10 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। डिवीजनल सतह के मुकाबले 15 से 20 जनवरी तक मुनक़िद होंगे। सूबाई सतह पर 25 से 30 जनवरी तक, जबकि चौथा और फाइनल मरहला 5 से 10 फरवरी तक मुनक़िद होगा। फाइनल मरहले के मुकाबले सियालकोट में होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया और खवातीन क्रिकेटर्स के तरबीती कैंप का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी ने कैंप में शरीक खवातीन खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने और तरबीती सेशंस के दौरान बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने की हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुकम्मल फिट प्लेयर का फ़र्क मैदान में वाज़ेह नज़र आता है और खिलाड़ियों को मेहनत, फिटनेस, स्टेमिना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। इस मौके पर कोचेज़ ने चेयरमैन पीसीबी को कैंप में जारी तरबीती सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़िला ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में बॉडी बिल्डिंग के 5वें सालाना मुकाबलों में अली अब्बास ने चैंपियनशिप जीतकर मिस्टर ननकाना का एजाज़ हासिल कर लिया। अरबाज मजीद मिस्टर शाहकोट करार पाए। तफसील बता रहे हैं असद अली रिजवी। ननकाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से शाहकोट जिम्नेजियम हॉल में मिस्टर जिला ननकाना और मिस्टर शाहकोट के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। तनसाजों के इन मुकाबलों में सीनियर, जूनियर, मास्टर एथलेटिक फिजिक और स्पोर्ट्स फिजिक की कैटेगरीज में तनसाजों ने हिस्सा लिया। ननकाना साहब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जिस लेवल पे लड़कों को तैयार कर रही है और मिस्टर ननकाना बना रहे हैं, जूनियर मिस्टर ननकाना, तहसील लेवल पे हम जो ये मुकाबले इनेकाद कर रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि यही बच्चे हमारे जो हैं वो नेशनल लेवल पे आगे आएंगे। तनसाजों के मुकाबलों में जिला भर से 55 बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। तनसाजों ने खूबसूरत मसल्स और दिल फरेब अंदाज के साथ महारत का मुजाहरा किया। जो मेरे उस्ताद हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद मेरे माँ बाप और ये ऑडियंस जिन्होंने मेरा साथ दिया जीतने में। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहसील शाहकोट और डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब का टाइटल विन किया और ये सब क्रेडिट मेरे उस्ताद साहब को जाता है। नताइज के मुताबिक मिस्टर ननकाना 2026 के एजाज के लिए अली अब्बास चैंपियन करार पाए और मिस्टर शाहकोट का एजाज अरबाज मसीह ने अपने नाम किया, जबकि हसन अली जूनियर मिस्टर ननकाना और अरफान अली जूनियर मिस्टर शाहकोट करार पाए। वालिदैन को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को मोबाइल और दूसरी सरगर्मियों से हटाकर उनको आप जिम और स्टेडियम और एक्सरसाइज की तरफ लेके आए। ननकाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के चेयरमैन और दीगर मेहमानों ने खिलाड़ियों में एजाजी असनाद और इनामात तकसीम किए। मुंतजमीन के मुताबिक तनसाजी के इन मुकाबलों का मकसद नए टैलेंट को सामने लाना और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाहकोट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत टोबा टेक्सिंग में वुमेन हॉकी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ अजला से आने वाली खवातीन खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। तफसील बता रहे हैं फरहान मजीद विर्क। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत टोबा टेक्सिंग वुमेन हॉकी फेस्टिवल 2025 गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जहां खवातीन खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। फेस्टिवल का मकसद खवातीन को खेल के बेहतर मौके देना और कौमी खेल हॉकी को फरोग देना था। मुख्तलिफ अजला से आने वाली टीमों ने भरपूर शिरकत की, नज़्म और ज़ब्त के साथ अच्छा खेल दिखाया, जिसे शायकीन ने खूब सराहा। पाकिस्तान में खेलों के लिए एक अच्छी शुरुआत है गोजरा से। फेस्टिवल का फाइनल मैच लाहौर और बहावलपुर की वेमन टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें बहावलपुर ने 2 गोल से कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया।
यहाँ पे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की गई थी इस टूर्नामेंट की और हमें बहुत मजा आया, एंजॉय किया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर अब्बास मेला, एसी गोजरा, मोहम्मद रियाज गुज्जर, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फातिहा भावलपुर टीम को 5 लाख रुपया नगद इनाम और गोल्ड मेडल दिए गए, जबकि रनर अप लाहौर टीम को 3 लाख रुपया नगद और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। में हमारा विमेन हॉकी फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ। 6 दिन का बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट था। टीमाशाइयों की बड़ी तादाद आज स्टेडियम में आई इसको देखने के लिए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन खेलता पंजाब के तहत होने वाला वुमेन हॉकी फेस्टिवल, जिसमें न सिर्फ खवातीन को आगे आने के मौके फराहम कर रहा है, बल्कि कौमी खेल हॉकी के फरोग में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। फरहान मजीद, PTV न्यूज़, गोजरा। सिख मजहब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के 360वें जन्मदिन तकरीबात के सिलसिले में गुरुद्वारा बालिला साहब ननकाना साहब में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। खेलों के मेले में सिख नौजवानों और बच्चों के माबैन कबड्डी, क्रिकेट और रस्साकशी समेत मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। सिख बरादरी की मर्द ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मुकाबलों में शरीक हुई। शायकीन ने बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों की दिल खोल कर हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ज़र अफसरान के हमरा फेस्टिवल में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इंटरनेशनल लीग T20 का फाइनल कल डेजर्ट वाइपर्स और MI एमिरेट्स के दरमियान खेला जाएगा। क्वालिफाइड 2 में MI एमिरेट्स ने अबूधाबी नाइट राइडर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। IL T20 के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। शारजा में खेले गए एलिमिनेटर 2 में अबूधाबी नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 120 रन बना सकी। अलीशान शरीफों ने मिड सेंचुरी बनाई और वो 50 रन पर नॉट आउट रहे। एलेक्स हेल्स ने 29 रन बनाए। MI एमिरेट्स के AM गजनफर ने 3, मोहम्मद रोहित और फजल फारूकी ने 2 विकेटें हासिल की। MI एमिरेट्स ने मतलूबा हदफ 16.1 ओवर्स में 3 विकेटों को नुकसान पर हासिल कर लिया। शकीब अल हसन 38 रन बनाकर आउट हुए। टॉम बेंटन ने 64 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अबूधाबी नाइट राइडर्स की जानिब से अजय कुमार ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। Boundary, much needed boundary. Pressure is off and then to rub salt into the wound. Smidgen of width and Sharkin gets cross into the stands. Oh, he gets that one wrong. And Banton. That's an educated edge. Not in full control. Gets it through. बिग बैश क्रिकेट लीग में ब्रिस्बेन हीट ने मेलबर्न स्टार्स को 4 विकेटों से हरा दिया। ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में मेलबर्न स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। सैम हार्पर ने 37, कप्तान मार्कस टॉनिस ने 43 और केमल खिलावा ने 29 रन स्कोर किए। ब्लैक मैकडोनल्ड ने 12 गेंदों पर 37 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। ब्रिस्बेन हीट की जानिब से थॉमस बेलकर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ब्रिस्बेन हीट ने 196 रन का हदफ 19.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान नेथन मैक्सवीने ने 43, मैट रेनशा ने 39 रन स्कोर किए। मैक्स ब्रायंट ने 48 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। ज़ावियर बाटलेट 21 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। बिग बैश क्रिकेट लीग के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। There he goes. That's the Bryant we know. And they might be fishing one out of the stands. That is a super shot down the ground. Bartlett showing what he's capable. बिग बैश लीग में T20 में आज सिडनी थंडर और होबार्ट हरिकेन्स मध्य मुकाबिल होंगे। सिडनी में शेड्यूल 21वां मैच दिन 1:15 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर होबार्ट हरिकेन्स 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि सिडनी थंडर की टीम 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। एडम मलक्रम 5 रुकनी प्रिटोरियस स्क्वाड की क़यादत करेंगे। कॉर्बन बॉश, डिवाल ब्रेविस, टॉनी डिजोजी, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, कोरिना मफाका और जैसन स्मिथ को पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। फास्ट बॉलर कगिसो रबादा इंजरी से सेहतयाब होकर टीम में वापस आ गए हैं। ग्रुप डी में शामिल जनूबी अफ्रीका की टीम मेगा इवेंट में अपना पहला मैच 9 फरवरी को कनाडा के खिलाफ अहमदाबाद में खेलेगी। जिम्बाब्वे ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड के नाम जारी कर दिए हैं। स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा की टीम की क़यादत सौंपी गई है। फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मजारबानी इंजरी से सेहतयाब होकर टीम में वापस आ गए हैं। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।
सऊदी अरब में पहला ओवरसीज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट में सऊदी अरब और बहरीन की दो टीमों ने शिरकत की और सनसनीखेज मुकाबले हुए। फाइनल मैच में JCA वॉरियर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टाइटल अपना नाम किया। तकसीम इनामात की तकरीब में फातेह टीम को ट्रॉफी, जबकि नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात और मेडल से नवाजा गया। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में अल अहली ने अल नसर को 3-2 से शिकस्त दे दी। जद्दा में खेले गए सनसनीखेज मैच में फातेह टीम अल अहली ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए अल नसर को हरा दिया। अल अहली की जानिब से इवान टोनी ने 2 गोल किए, जबकि मरीह दिमिरियाल ने 1 गोल दाकर टीम की फतह यकीनी बनाई। अल नसर की जानिब से दोनों गोल अब्दुल इला अल अमरी ने किए। पहले हाफ के इख्तिताम तक मैच 2-2 से बराबर था, तहम 55वें मिनट में दिमिरियाल के गोल ने अल अहली को अहम 3 पॉइंट्स दिलाए। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर की 31 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि अल अहली 25 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। इतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए में मिलान ने कैलियारी को शिकस्त दे दी। कैलियारी में खेले गए मैच में मिलान ने मेजबान टीम को 1 गोल से जेर किया। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल राफेल लियाओ ने खेल के 50वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर मिलान 38 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। इंटर दूसरे और नापोली तीसरे नंबर पर है। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त, एक ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिजा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।